A very good evening to all of you, my dear kids. I am Manisha Das on behalf of A-Tuition family. Welcome you all to today's class. Let me remind you that our A-Tuition family is providing quality education for your better tomorrow. So don't forget to be a part of our family. Okay. So my dear class 8 students, we are at the part 2 of this lesson, cell structure and function. It is very interesting topic, right? So in today's part we are going to discuss about the different parts of the cell. जैसे आपके बॉडी में different parts होते हैं, सबके अलग अलग फंक्शन होते हैं. So cell के भी अलग अलग parts होते हैं. They used to do different types of functions. So let's have a look. So first, what are the points we are going to discuss today? We'll be discussing about parts of the cell, their structure, their function, and we'll compare how plant cell are different from animal cell. Can you look at this beautiful diagram? It is the structure inside the cell, structure of the cell. It is having so many beautiful parts, right? And about whom we are going to discuss today. Okay? So, see, in the previous class I have told you, cell होता है, cell together make tissue, tissue together make organ, organ together make organ system, and like this organisms are formed. ठीक है? Okay. So ये जो cell होता है, right? Cell is having different types of parts. Okay? Like see, cell membrane, DNA, lysosome, ribosome, mitochondrion, Golgi apparatus, cytoplasm, endoplasmic reticulum and nucleus. Okay, about whom we are going to discuss. Just know that these are the parts present in our cell. Now, so cell membrane or plasma membrane. Just remember the term membrane means covering. Okay, membrane means covering. Okay. So, the outermost covering of the cell, especially in animal cell, that separates the content of the cell from its external environment. See, my skin, and inside the skin there are certain cells are there. So, my skin is protecting inside the cell. It means protecting my inner skin from the outside environment. ठीक है, मोबाइल में कवर होता है. ठीक है, क्यों लगाते हैं? ताकि मोबाइल गिरे ना. मोबाइल को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से अवॉइड. मास्क लगाते हैं हम, क्यों? बाहर का कोई भी जो अभी हम बोल रहे हैं वायरस वगैरह, वो आके क्या डायरेक्ट हमारे अंदर ना घुसे, मास्क में लग जाए. लाइक दैट, यही तो होता है कवरिंग. तो ये क्या करता है? सेल को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है. कौन? सेल मेम्ब्रेन. इट प्रोटेक्ट्स द सेल. इट इज मेड अप ऑफ लिपोप्रोटीन. ये किससे तैयार होता है? लिपिड्स और प्रोटीन से बनता है. इट इज़ वेरी थिन, बहुत ही पतला होता है और फ्लेक्सिबल होता है. ये अपना शेप जो है चेंज कर सकता है और ये लिविंग होता है. इट्स फ्लेक्सिबिलिटी एनेबल्स द सेल टू एनगल्फ इन फूड फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल. एमीबा देखा है? एमीबा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मैंने आपको बताया था एमीबा. तो ये जो एमीबा होता है उसका क्या होता है? वो शेप को चेंज कर सकता है. क्यों? उसका सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल नहीं है. तो सेल मेम्ब्रेन क्या करता है? उसके शेप को चेंज करेगा और अपने फूड को क्या कर लेगा? पकड़ लेगा. राइट? ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट. सी, और भी बहुत सारे काम है सेल मेम्ब्रेन के पास. क्या क्या काम है? इट अलाउज द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल. और क्या काम है? सेल के अंदर कुछ मटेरियल्स घुसेंगे और सम ऑफ देम विल कम आउट. ये क्या करता है? गार्ड की तरह काम करता है. राइट? कि किसको अंदर जाने देना है, किसको अंदर नहीं जाने देना. इट ऑल्सो प्रिवेंट मूवमेंट ऑफ सम अदर मटेरियल्स. तो ये गार्ड है ना, जिसके पास होगा उसको जाने देगा, जिसके पास गार्ड नहीं है तुम नहीं जा सकते. ठीक है. इट इज़ कॉल्ड एज सिलेक्टिवली परमिएबल. क्यों? ये सिलेक्ट करके भेजता है. अरे तुम्हारा ID कार्ड दिखाओ, नहीं है, अंदर नहीं जा सकते. लाइक दैट. एंड मेंटेन्स द शेप ऑफ द सेल. एनिमल सेल्स में ये क्या करता है? सेल के शेप को मेंटेन करता है. ओके, नाउ नेक्स्ट कम्स cell wall. Cell wall is an extra membrane. Okay, it is a non-living. वो living था cell membrane. Cell wall क्या है? Non-living है. Rigid layer surrounding plasma membrane, यानी कि cell membrane के ऊपर और एक डबल कवरिंग है. ये किससे बना हुआ है? सेल्यूलोज. लेकिन वो किससे बना था? लिपोप्रोटीन से. ये क्या है? फ्रीली परमेबल, सभी को पास दे देगा, सभी जाओ. उसके बाद सेल मेम्ब्रेन क्या करेगा? सिलेक्टिवली उसको सिलेक्ट करेगा कि किसको जाना है. इट गिव्स रिजिडिटी और शेप भी देता है. किसमें? प्लांट सेल में. तो सेल वॉल किस में प्रेजेंट है? प्लांट सेल में. प्लांट सेल्स नीड प्रोटेक्शन अगेंस्ट वेरिएशंस इन टेम्परेचर, हाई विंड स्पीड, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर. क्यों? हम एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकते हैं, राइट, बट प्लांट कैन नॉट मूव. तो इसके लिए उनको क्या है? ज़्यादा प्रोटेक्शन चाहिए, इसीलिए दे हैव द सेल वॉल. दे आर एक्सपोज टू दोज वेरिएशंस बिकॉज दे कैन नॉट मूव. इसीलिए उनको क्या होता है? बहुत प्रॉब्लम्स आती है ना,
तो इसीलिए क्या होता है, उनके पास सेल वॉल होता है। और सेल वॉल को ना आप लीफ को पील करके जो ट्राडेस्कैंटिया एंड एलोडा एंड रियो इस फ्लावर में आप देख सकते हो। नेक्स्ट कम्स न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है ना, आपने देखा है घर पे ना, ठीक है, मम्मी क्या होती है, हमारी बॉस होती है, कहीं कहीं पे पापा भी बॉस होते हैं, ऑफिस में जैसे बॉस होते हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियस क्या है, हमारे सेल का बॉस है, जो करूँगा मैं, जो बोलूँ वही करना है बस, ठीक है। तो क्या है न्यूक्लियस, इट इज़ द मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल दैट कंटेन्स जेनेटिक मटेरियल डीएनए ऑफ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। तो हमारे में क्या है ना, डीएनए होता है, आपने ये सुना होगा ना सीआईडी में, दया कुछ तो गड़बड़ी है, डीएनए किसका है पता लगाओ। यानी कि डीएनए क्या होता है ना बेटा, ये हमारी पहचान है, जैसे आधार कार्ड होता है ना हमारे पास, ये क्या होता है, डीएनए क्या है, हमारी पहचान, आइडेंटिटी होता है। तो ये कौन रखता है, न्यूक्लियस रखता है ना, इंपॉर्टेंट ऑर्गन। सो द डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कवर्स द न्यूक्लियस। तो ये क्या है, हमारे वीआईपी हैं, तो इनको भी तो प्रोटेक्शन चाहिए, तो इन्होंने क्या किया, अपने ऊपर भी डबल लेयर का मेम्ब्रेन बना दिया, जिसको क्या बोलते हैं हम, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन को हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और क्या उसमें छोटे छोटे क्या होते हैं, न्यूक्लियर पोर, छोटे छोटे होल होते हैं, गड्ढे होते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है, न्यूक्लियर पोर। और वो क्या करते हैं, कुछ न्यूक्लियर मटेरियल के ट्रांसफर में हेल्प करते हैं। द फ्लूइड प्रेजेंट, और इसके अंदर भी कुछ लिक्विड जैसा होता है, उसे क्या बोलेंगे हम, न्यूक्लियोप्लाज्म, ओके। एंड इन द न्यूक्लियोप्लाज्म डार्कली स्टेन बॉडी इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोलस। फिर उसके अंदर एक डार्क स्टेन बॉडी होता है, उसे क्या बोलते हैं हम, न्यूक्लियोलस। और देखो ये जो हमारा न्यूक्लियस है ना, उसने हमें बताया अभी डीएनए होता है, तो इनसाइड द न्यूक्लियस सम डार्कली स्टेन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे थ्रेड जैसा होता है, ठीक है, धागा जैसा होता है, विच आर कॉल्ड एज क्रोमाटिन फाइबर्स, ओके। एंड द सेल इज डिवाइडिंग सम एक्स लाइक स्ट्रक्चर, ये जो एक्स जैसे बन जाएंगे, जब सेल डिवाइड करेगा ये सारे मिलके एक्स जैसे स्ट्रक्चर बन जाएंगे, जिसे हम क्या बोलेंगे, क्रोमोसोम। फिर क्रोमोसोम में क्या है, डीएनए होते हैं। तो डीएनए में फिर क्या फंक्शनल होते हैं, नॉन फंक्शनल, कुछ चाहिए होता है, कुछ नहीं चाहिए होता है। जो चाहिए होता है, जो इंपॉर्टेंट होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं, ठीक है। और यही जो जीन है, ये क्या करते हैं, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग को पास होते हैं, ओके। नाउ साइटोप्लाज्म, प्लाज्म मीन्स फ्लूइड, साइटो मीन्स सेल, सेल के अंदर जो फ्लूइड होता है उसे हम क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म। तो इट इज़ अ जेली लाइक फ्लूइड, पूरा पानी जैसा नहीं होता, जेली जैसा होता है, जो कि सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस में, यानी कि न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म में इंक्लूडेड नहीं है। इट कंसिस्ट ऑफ 80% वाटर होता है, और बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जो इसमें क्या सस्पेंडेड, तैरते हुए रहते हैं। तो साइटोप्लाज्म मतलब सेल ऑर्गेनल, और साइटोसोल, तो सिर्फ लिक्विड को हम साइटोसोल बोलेंगे, और सेल ऑर्गेनल्स को मिला के साइटोप्लाज्म। और न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को हम अगर मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, प्रोटोप्लाज्म। ये टर्म सुना सुना लग रहा है ना, तो बताओ किसने निकाला था ये टर्म प्रोटोप्लाज्म, पुरकिंजे कॉइन्ड द टर्म प्रोटोप्लाज्म, ओके। नाउ सेल ऑर्गेनल्स, क्या क्या सेल ऑर्गेनल्स हैं, देखो विद इन द सेल द स्पेशलाइज सब यूनिट्स आर कॉल्ड एज सेल ऑर्गेनल्स। तो उसके अंदर भी कुछ डिफरेंट पार्ट्स हैं, राइट। तो वो क्या क्या है, सी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी apparatus, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स एंड वैक्यूल्स। तो जिसके बारे में अब हम पढ़ेंगे, ठीक है। सो उससे पहले आपके बुक में दिया है प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट। प्रो मीन्स प्रिमिटिव, जैसे आप फ्री फायर और या फिर पबजी खेलते हो ना, उसमें क्या होता है, बोलते हो ना नूब प्लेयर, नूब यानी कि जो नया नया सीख रहा है, ठीक से खेलना नहीं आता, लाइक दैट प्रोकैरियोट्स, जो कि डेवलप नहीं है, पुराने सेल्स हैं। जो पुराने हैं उनके पास क्या थे, इतने सारे सेल ऑर्गेनल्स नहीं थे, कवरिंग नहीं थी, न्यूक्लियस इतना वेल ऑर्गेनाइज नहीं था, तो उसको प्रोकैरियोटिक सेल बोला जाता है। और यूकैरियोट्स यानी कि प्रो प्लेयर, जो प्रो यानी क्या बहुत ही अच्छा हो, तो यूकैरियोटिक माने क्या है, ये पूरा डेवलप होता है, जो कि क्या उसके सारे जो वेरियस ऑर्गेनल्स हैं वो मेम्ब्रेन उनके पास कवरिंग होता है, राइट। सी, the nucleus of the bacterial cell is not well organized like the cell of multicellular organism. There is no nuclear membrane. The cells having nuclear material without nuclear membrane are called as prokaryotic cell. तो और जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन्हें प्रोकैरियोट्स बोला जाता है। प्रो यानी कि प्रिमिटिव यानी कि नूब प्लेयर, ठीक है, जैसे बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन। एट द सेम टाइम अगर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स को हम लें, उनके पास क्या होता है, उनके सेल के सारे मेम्ब्रेन क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंड, और सेल के जो जितने भी होते हैं वो सारे मेम्ब्रेन होते हैं उनके पास, उन्हें यूकैरियोट्स
यानी कि ट्रू, यानी कि जो प्रो प्लेयर्स होते हैं। देन जीन क्या होता है? जीन इज ए यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, जो हम क्या पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग को पास आता है, ऑफस्प्रिंग के पास आता है। दिस मीन्स दैट योर पेरेंट पास सम ऑफ योर कैरेक्टर्स ऑन टू यू, यानी कि मम्मी पापा ने तथास्तु बोल दिया, कुछ उनके अच्छे गुण हो हमारे पास आ गया, जैसे कि ब्राउन आइज या फिर हेयर कलर, कर्ली हेयर, लाइक दैट, ठीक है। गोदरेज पाउडर लगा के मत बोल देना कि ये मम्मी पापा का नहीं था, मेरे कलर ऐसा हो गया, नेचुरली जो आता है, ठीक है। ओके, नाउ व्हाट इज माइटोकॉन्ड्रिया? माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला जाता है? पावर हाउस ऑफ ए सेल। मोबाइल की बैटरी होती है, चार्ज ना हो तो मोबाइल चलेगा, है ना। तो ये क्या होता है? हमारे सेल का चार्जर होता है, सेल का बैटरी होता है ये पावर हाउस। इट रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, तो ये एनर्जी को किस में स्टोर करता है? एटीपी, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, इसको याद रखना है, ठीक है। नाउ प्लास्टिड्स क्या होता है? पहले मैं बता दूँ, ये ओनली दे आर प्रेजेंट इन प्लांट्स। प्लास्टिड्स आर स्पेशलाइज्ड डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गन, इसके पास भी डबल कवरिंग है ना, वीआईपी है। फाउंड ओनली इन प्लांट, प्लांट के पास होता है। दे आर जेली लाइक स्ट्रक्चर इनसाइड कॉल्ड ए स्टोमा, और इसके अंदर कुछ भी जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है उसे क्या बोलते हैं? स्टोमा। और इसके पास खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है, ठीक है। सो टाइप्स ऑफ प्लास्टिड, प्लास्टिड के भी टाइप होते हैं। एक होता है क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट सुना सुना लग रहा है, राइट। सो ल्यूकोप्लास्ट को होता है जो कलरलेस होता है, ठीक है। और क्रोमोप्लास्ट क्या होता है? जो कलर्ड होता है, डिफरेंट कलर, ब्लू, रेड, येलो। और क्लोरोप्लास्ट जो होता है ग्रीन प्लास्टिड होते हैं। तो अभी हम इसका फंक्शन जान लेंगे। जैसे कि क्लोरोप्लास्ट, इसमें क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होता है, क्लोरोफिल होते हैं जो कि ऑक्सीजन रिलीज में हेल्प करता है। क्रोमोप्लास्ट क्या करेगा? डिफरेंट कलर देता है, किसको? फ्लावर को देता है, जो कि फ्लावर पूरा लगेंगे अट्रैक्टिव, तो पोलिनेशन में हेल्प हो जाएगा, इंसेक्ट आ जाएंगे। ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है? स्टार्च, एमिनो एसिड और फैट को स्टोर करता है। अंडरस्टूड। नेक्स्ट आता है वैक्यूल। वैक्यूल क्या है? बड़ा सा जो बैलून जैसा नहीं लग रहा, बलून जैसा स्ट्रक्चर, ये क्या करता है? स्टोरेज से, इसमें बहुत कुछ स्टोर होकर रहता है ना। एनिमल सेल साइज ऑफ द वैक्यूल इज स्मॉल, एनिमल सेल में बहुत ही छोटा सा वैक्यूल होता है। तो ये किसका सेल है? प्लांट का सेल, क्योंकि प्लांट के सेल में ना 50 to 70% या फिर 70 to 90% आप बोल सकते हो, उतना वॉल्यूम कौन ले लेता है? वैक्यूल। वाटर प्लस मिनरल इसके अंदर रहता है। इट स्टोर सेल सैप विच में बी लिक्विड, सॉलिड फूड और टॉक्सिक बाई प्रोडक्ट। इट प्रोवाइड्स रिजिडिटी एंड टर्जिडिटी टू प्लांट सेल, ठीक है। ये प्रोटेक्ट करता है प्लांट सेल। और कंपैरिजन, अभी प्लांट और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है? प्लांट सेल क्या होता है? एनिमल सेल से ज़्यादा बड़े होते हैं और उसमें सेल वॉल होता है, लेकिन एनिमल सेल में सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल वॉल नहीं होता। प्लास्टिड्स यहाँ पे प्रेजेंट होता है, लेकिन एनिमल सेल में नहीं होता, बिकॉज दे आर हेट्रोट्रॉपिक, राइट। और प्लांट सेल में सेंट्रोजोम नहीं होता, एनिमल सेल में सेंट्रोजोम होता है। और प्लांट सेल में वैक्यूल कितना, इतना बड़ा होता है ना, 70 to 90%। और एनिमल सेल में बहुत ही छोटे होते हैं और कभी कभी एब्सेंट भी होते हैं। अंडरस्टूड? ओके। So with this, I think we have completed our chapter. So in the next part, we are going to discuss the question answer. And see, biology is the science, evolution is the concept that makes biology unique. आपने देखा था वो संडे एडवेंचर वाला, उसमें देखिए मैंने दिखाया, मतलब मैंने बताया है कि कैसे हम लोग इवॉल्व हुए। तो बायोलॉजी क्या है? इंटरेस्टिंग होता है। अगर आपने उसके इवोल्यूशन को, मतलब कैसे एक छोटे ऑर्गेनिज्म से इतने बड़े ऑर्गेनिजम्स बने, ठीक है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो इसीलिए बायोलॉजी सबसे यूनिक है। So with this, I would like to request you be a part of our eTuition family. Don't forget to watch, like, share and subscribe to our channel. Till then, stay safe, stay happy and happy reading. Thank you.